Hello everyone, welcome to channel. Let's start locomotion and movement part 2. Mechanism of muscle contraction. Mechanism of muscle contraction is the best explained by sliding filament theory, which states that contraction of muscle fiber take place by the sliding of the thin filament over the thick filament. Mechanism of muscle contraction. मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्लेन होता है बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. ये थ्योरी बोलती है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ muscle fiber take place by the sliding of thin filaments over thick filament. Right? Muscle contraction is initiated by a signal sent by CNS via motor neuron. A motor neuron along with the muscle fiber connected to it constitute a motor unit. कह रहे हैं कि मोटर न्यूरॉन along with muscle fiber जो कि मोटर न्यूरॉन से कनेक्टेड है और मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर मिला के हमारा बनता है मोटर यूनिट. Please mark this. The junction between a motor neuron and a sacrolemma of the muscle fiber is called neuromuscular junction or motor end plate. अब कह रहे हैं कि जंक्शन between motor neuron और sacrolemma of the muscle fiber is called neuromuscular junction या फिर मोटर एंड प्लेट. राइट. Neural signals reaching this junction releases a neurotransmitter जिसका नाम है acetylcholine, which generates an action potential in the sacrolemma.
अब कह रहे हैं कि न्यूरल सिग्नल्स जो कि इस जंक्शन पे पहुंच रहे हैं वो रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है एसिटिल कोलाइन और ये जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल सैक्रोलेमा में। This spread through the muscle fiber causes the release of calcium ion in the sarcoplasm. ये रिलीज करता है कैल्शियम आयंस को सैक्रोप्लाज्म में। इम्पॉर्टेंट लाइन है, increase in Ca++ level leads to the binding of calcium with the subunit of troponin on actin filament and thereby remove the masking of active site for myosin. अब कह रहे हैं कि Ca++ लेवल के इंक्रीज होने से जो कैल्शियम होता है वो बाइंड हो जाता है with the subunit of troponin on actin filament पे और ये रिमूव फिर कर देगा मास्किंग को एक्टिव साइट के मायोसिन के लिए। Utilizing the energy from ATP hydrolysis, the myosin head now bind to the exposed active site on actin to form cross bridge. ये नीचे धर दिया गया है। ये फॉर्मेशन हो रहा है क्रॉस ब्रिज का। अब कह रहे हैं कि ये एटीपी हाइड्रोलिसिस से एनर्जी यूटिलाइज कर लेते हैं। एटीपी हाइड्रोलिसिस से एनर्जी यूटिलाइज कर देते हैं। जिससे जो मायोसिन हुआ
उसका हेड अब बाइंड हो जाएगा एक्सपोज्ड एक्टिन के एक्टिव साइट पे, और ये बना लेगा क्रॉस ब्रिज। अब कह रहे हैं दिस pulls the attached actin filament towards the center of A band. अब कह रहे हैं कि ये पुल करेगा अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट को ए बैंड के सेंटर की तरफ, ए बैंड के सेंटर की तरफ। द जेड लाइन अटैच टू दीज एक्टिन आर ऑल्सो पुल्ड इनवर्ड्स। जेड लाइन भी अंदर खिंच रही है, जेड लाइन भी खिंच रही है अंदर की तरफ, and thereby causing a shortening of sarcomere, that is contraction. और इससे फिर हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन। जो आई बैंड है वो रिड्यूस हो गया, वेयर ए बैंड रिटेन्स द लेंथ, और ए बैंड अपने ओरिजिनल लेंथ पे आ गया, रिटेन द लेंथ। द मायोसिन रिलीज ADP एंड P1 गोज बैक टू इट्स रिलैक्स स्टेट। और कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ही जो मायोसिन रिलीज कर रहा है ADP और P1 को, वो वापस से रिलैक्स स्टेट में चला जाएगा। A new ATP binds and cross bridge is broken। फिर जो न्यू ATP है वो बना और क्रॉस ब्रिज टूट गया। ATP is again hydrolyzed by the myosin head and cycle of cross bridge formation and breakage is repeated, causing further sliding. The process continues till the Ca++ ions are pumped back to the sacroplasmic cisterna, resulting into the masking of actin filament. फिर इसके बाद ये जो साइकिल है वो रिपीट हो गई, और ये तब तक रिपीट करेगी जब तक Ca++ आयन्स वापस पंप बैक हो जाएंगे, जब तक Ca++ आयन्स वापस नहीं जाते हैं सैक्रोप्लाज्मिक सिस्टर्ना में, और जब तक मास्क नहीं कर लेते एक्टिन फिलामेंट को, तब तक ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। This causes the return of Z line back to their original position, that is relaxation। अब इसके बाद जो Z line है, इस प्रोसेस से Z line रिलैक्स स्टेट में आ गया। The reaction time of the fiber can vary in different muscles।
Repeated activation of the muscle can lead to the accumulation of lactic acid due to anaerobic breakdown of glycogen in them, causing fatigue. एक्टिवेशन मसल्स का लीड कर देगा मसल्स का लीड करेगा टू अकोमोलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड किसकी वजह से? ड्यू टू एन एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन और जिससे और ये कॉज करेगा फैटिग. रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट जिसको हम लोग कहेंगे ग्लोबिन. वो अब रेड अपीयरेंस बना देंगे. ऐसे मसल्स को हम लोग कहते हैं रेड फाइबर्स. इनके पास ढेर सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है. प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो कि यूटिलाइज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि इनमें स्टोर होता है एटीपी प्रोडक्शन के लिए. और ऐसे मसल्स को हम लोग कहते हैं एरोबिक मसल्स. एरोबिक मसल्स. On the other hand, some of the muscles possess very less quantity of myoglobin and therefore appears pale or whitish. These are the white fibers. Number of mitochondria are fewer in them, but amount of sacroplasmic reticulum is high. They depend on aerobic process for energy. अब कुछ मसल्स में जो मायोग्लोबिन होता है उसका लेवल लो होता है, तो उस वजह से उसको हम लोग कहते हैं वाइट फाइबर्स. राइट. और इन मसल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कम होता है, लेकिन जो सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसका लेवल हाई होता है
और ये डिपेंड करता है एरोबिक प्रोसेस पे, एनर्जी के लिए। अब आगे आते हैं स्केलेटल सिस्टम पे। स्केलेटल सिस्टम जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो कंसिस्ट करता है फ्रेम ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस। Bones and cartilage are specialized connective tissue. Bones are very hard matrix due to calcium salt in it, and cartilage are slightly pliable matrix due to chondrite salts. Please mark that. Please mark this. स्केलेटल सिस्टम में होता है बोन और कार्टिलेज। जो बोन होता है वो हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि इनके पास कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं। और जो कार्टिलेज होता है, ये प्लिएबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास ये प्लिएबल मैट्रिक्स होते हैं। प्लिएबल मैट्रिक्स होते हैं क्योंकि इनके पास कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स होता है। इन ह्यूमन बीइंग 206 बोन्स होते हैं और कुछ कार्टिलेज होते हैं। इट इज़ ग्रुप्ड into two principal division, axial and appendicular skeleton. Axial और appendicular skeleton. Appendicular skeleton. Skull, vertebral column, sternum,
और रिब्स, ये चारों होते हैं मिलके बनाते हैं हमारे एक्सियल बोन, राइट। ये चारों मिलके कंस्टिट्यूट करते हैं हमारे एक्सियल बोन को। जो एक्सियल बोन है, एक्सियल स्केलेटन है, उनके पास 80 बोन्स होते हैं। उसके बाद कह रहे हैं जो स्कल है, अब स्कल के बारे में पढ़ रहे हैं। स्कल है जो स्कल है ये कंप्राइज करता है स्कल कंप्राइज करता है या फिर बना है दो सेट ऑफ बोन से, क्रेनियल और फेशियल। ये दोनों बोन्स मिला के हमारे बनते हैं 22। ये हमारे होते हैं 8 और ये होते हैं 14। जो ये क्रेनियल होता है, ये हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग होती है। क्रेनियम फॉर ब्रेन। ये सिंगल यू शेप्ड बोन होता है जिसको हम लोगों ने हायोइड कहा है, जो कि बकल कैविटी के बेस पर होती है। ईयरोसिकल के बारे में पढ़ते हैं। 3 टाइनी बोन्स होते हैं ईयर्स में, जो 3 होते हैं उनको मिला के हमारा बनता है ईयरोसिकल। पहला है मेलियस, दूसरा है इंकस और तीसरा है स्टिप्स, और ये तीनों मिला के हम लोग बोलते हैं ईयरोसिकल। तो कह रहे हैं स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स विद सुपीरियर region of the vertebral column with the help of two occipital condyles, जिसका हम लोगों ने कहा डाइकोंडाइलिक स्कल। आगे आते हैं। हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वो फॉर्म होता है 26 सीरियली अरेंज यूनिट से, जिसको हम लोग कहें वर्टिब्रा, और ये डॉर्सली प्लेस्ड होता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल and constitute the main framework of the trunk. Each vertebra has a central hollow portion, जिसको हम लोगों ने कहा है न्यूरल कैनाल, through which spinal cord passes. अब जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उनके पास 26 serially arranged यूनिट्स होते हैं, जिनको हम लोगों ने कहा है
वर्टिब्रा। ये डॉर्सली प्लेस्ड होते हैं। डॉर्सली प्लेस्ड होते हैं और ये एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल टू base of skull and constitutes main framework of the trunk और हर एक वर्टिब्रा के पास सेंट्रल हॉलो पोर्शन होता है जिसको हम लोगों ने न्यूरल कैनाल भी कहा है, जिससे स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। जो फर्स्ट वर्टिब्रा है उसका नाम है एटलस और ये आर्टिकुलेट करता है विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। वर्टिब्रल कॉलम के पास 7 सर्वाइकल होते हैं, 12 थोरेसिक होते हैं, 5 लंबर होते हैं, एक फ्यूज्ड सैक्रल होता है और एक फ्यूज्ड कॉक्सीगील होता है। इनके पास ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये डिफरेंशिएटेड है इनटू सर्वाइकल्स, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सीगील। सर्वाइकल नंबर में 7 होते हैं, थोरेसिक 12 होते हैं, लंबर 5 होते हैं और ये दोनों एक होते हैं जो कि फ्यूज्ड होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। Number of cervical vertebra are 7 in almost all mammals, including human beings. Vertebral column protects spinal cord, supports head, and serves as point of attachment of the ribs and musculature of the back. Sternum is a flat bone on the ventral midline of the thorax. अब स्टर्नम के बारे में बता रहे हैं।
स्टर्नम क्या होता है? ये एक फ्लैट बोन होता है ऑन द वेंट्रल midline of the thorax, midline of thorax। अब रिब्स के बारे में पढ़ते हैं। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं और हर एक रिब थिन फ्लैट बोन होता है जो कि कनेक्टेड होता है डॉर्सली टू द वेंट्रल वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। जो रिब्स होता है वो 12 होता है नंबर में और ये कनेक्टेड होता है डॉर्सली और वेंट्रली। डॉर्सली कनेक्टेड होता है टू वर्टिब्रल कॉलम और वेंट्रली ये कनेक्टेड होता है टू द स्टर्नम। जो रिब्स होते हैं हर एक रिब थिन फ्लैट बोन होता है, ठीक है। इट हैज़ टू articulation surfaces on its dorsal end and is hence called bicephalic। और कह रहे हैं जो रिब्स हैं इनके पास 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होता है इनके डॉर्सल एंड पे और इनको हम लोग कहते हैं बाइसिफेलिस। बाई आर ट्रू रिब्स। पहले के 7 पेयर्स उनको हम लोग कहते हैं ट्रू रिब्स। डॉर्सली दे आर अटैच्ड टू द thoracic vertebra and ventrally connected to the sternum with the help of hyaline cartilage। ये डॉर्सली कनेक्टेड होते हैं thoracic वर्टिब्रा से और वेंट्रली कनेक्टेड होते हैं sternum से with the help of hyaline cartilage। जो 8th 9th और 10th
पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, ये डायरेक्टली आर्टिकुलेट नहीं होते स्टर्नम से, लेकिन ये ज्वाइन होते हैं 7th रिब से विद द हेल्प ऑफ हाइलेन कार्टिलेज, राइट। दीज आर कॉल्ड वर्टिब्रोंकोड्रल, मतलब फॉल्स रिब्स। जो 8th 9th और 10th रिब्स होते हैं, मतलब पेयर्स होते हैं रिब्स के, इनको हम लोग कहते हैं फॉल्स रिब्स। और ये डायरेक्टली आर्टिकुलेट नहीं होते हैं वर्टिब्रल कॉलम से, स्टर्नम से। ये डायरेक्टली आर्टिकुलेट नहीं होते हैं स्टर्नम से, लेकिन ये 7th रिब से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइलेन कार्टिलेज, राइट। अब आगे पढ़ते हैं। जो लास्ट के 2 पेयर्स होते हैं 11th और 12th, ये कनेक्टेड नहीं होते हैं वेंट्रली, और इनको हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। जो लास्ट के 2 पेयर्स होते हैं 11th और 12th, उनको हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। thoracic vertebra, ribs, sternum, ये मिलके बनाते हैं हमारे रिब केज। वर्टिब्रा, रिब्स और स्टर्नम, ये सब टुगेदर दे फॉर्म रिब केज। ये मिलके बनाते हैं हमारे रिब केज।